کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ وہ اسے بستر پر دھکا دیتے اپنے بیلٹ نکالتا اس کی جانب بڑھا۔ ایس پی کبیر کاظم کے چہرے پر اس وقت بے انتہا غصہ تھا اور سامنے وہ کمسن لڑکی بری طرح لرزے جا رہی تھی۔ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ بامشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، جب تمہارا جسم داغدار کروں گا خود سب بتاؤ گی۔ اس نے بیلٹ کو پاس بیڈ گراؤنڈ پہ مارا تو رشنا کی چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی باہر سے دروازہ بجانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تائی جان ہمیں بچا لے، وہ وہیں سے روتے ہوئے دبا دبا چلائے۔ کبیر بیٹا دروازہ کھولو۔ اس سب میں رشنا کی کوئی غلطی نہیں، وہ دروازہ پیٹتے بولے جا رہی تھی۔ کبیر کے ماتھے پر ان گنت پل پڑے۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، صاف صاف بتاؤ عروسہ کہاں ہے؟ کدھر بگایا ہے اسے تم نے؟ اس کے بہت قریب ہوتے ہی اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ ہم سے قسم لے لیں، ہمیں نہیں پتا۔ وہ پورے جسم سے کانپتی کبیر کے سامنے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اچھا، اس کے نکاح کے وقت تم اس کی جگہ گھونگھٹ نکال کے بیٹھ گئی اور وہ وہاں سے غائب ہوگی، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ تمہیں تو میں سیدھا جیل میں بند کروں گا۔ کبیر نے اسے اچھا خاصا ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ کبیر بیٹا دروازہ کھولو، رشنا کو چھوڑ دو۔ مسز کرن کاظم نے بے بسی سے بیٹے کو پکارا۔ ایک طرف عین نکاح کے وقت بیٹی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری طرف اپنی جگہ اپنی مرحوم چچا کی بیٹی رشنا کیسر کو بٹھا گئی تھی، جو کہ کبیر کی بچپن کی منکوہا تھی۔ اس وقت تو گھر میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ نکاح کے وقت جب نکاح پڑھایا جانے لگا تو اچانک سے ایس پی کبیر کاظم کو شک سا گزرا۔ اس نے سب کے سامنے گھونگھٹ الٹ دیا۔ تب یہ راز کھلا کہ وہ عروسہ نہیں بلکہ رشنا ہے۔ وہ اسی وقت اسے کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ سبھی کے لیے سچویشن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوا تھا اور پھر ہینڈل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ رئیس خان کا دماغ پل میں گھوما۔ وہ تو عروسہ سے نکاح کر رہا تھا اور گھونگھٹ میں کوئی اور لڑکی۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہوا۔ عروسہ اس کی مورے کی پسند تھی اور وہ اپنی مورے کی پسند پہ لبیک کہتا بارات لایا تھا، اور اب یہ حالات اسے سپیچ لیس بنا گئے تھے۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں رشنا، آنسر می۔ اس کے گلے پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا کہ اسی لمحے اس کے موبائل پہ انسپیکٹر علی کی کال آنے لگی تو وہ فوراً کال پک کر گیا۔ سر، ہائی وے پہ ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ کبیر کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسکی تھی۔ لاش؟ اسے لگا وہ سب کچھ کھو گیا ہے ان لمحوں میں۔ رکو یار، کہاں نکلتی جا رہی ہو؟ 2 منٹ رکو، مجھے شیزا سے بات کرنے تو پھر چلتے ہیں۔ عروسہ نے رشنا کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، جو آج عروسہ کے ساتھ کالج میں ایڈمیشن کروانے آئی تھی۔ عروسہ خود یونیورسٹی میں تھی۔ رشنا نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ عروسہ ہر سٹیپ پہ اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ اس کی کزن تھی، چچا جن کی بیٹی جن کی بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ انہی کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ عروسہ کو بے حد عزیز تھی۔ عروسہ وہاں کی ایڈمنڈ شیزا سے مل کر واپس لوٹی تو وہ وہیں پہ کھڑی تھی۔ اس کی یہ فرما برداری عروسہ کو بہت اچھی لگی۔ وہ اس کی ہر بات سنتی تھی اور مانتی بھی تھی۔ وہ 16 سالہ چھوٹی سی لڑکی عروسہ سے 5 سال چھوٹی تھی، جبکہ کبیر ایک 26 سال ایس پی آفیسر تھا جس نے حالیہ CS کر کے امتحان کیا تھا اور ایس پی کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ وہ 15 سال کا تھا جب 5 سالہ رشنا سے اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رشنا کے والدین اور کاظم شاہ کی مرضی سے یہ نکاح ہوا تھا، جبکہ کبیر اس نکاح سے بالکل راضی نہ تھا۔ وہ اتنی چھوٹی بچی تھی جبکہ کبیر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، پر باپ کی خواہش کے آگے وہ سر جھکا گیا۔ پھر بھی وہ اپنے دل میں رشنا معصوم کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہوتا محسوس نہ کر سکا، کیونکہ اسے یہ سب رشنا کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں رشنا کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے میں کاظم صاحب بہت دل ہار گئے تھے اور 2 سال بعد ہارٹ اٹیک سے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے میں اس کی والدہ کرن نے اس کا خوب ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بھی اپنے بچوں پہ جان چھڑکتی تھی۔ عروسہ آپی، آؤ آئس کریم کھائیں ہم۔ گاڑی میں بیٹھتے رشنا نے عروسہ سے پوچھا، جو ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ جو حکم میری جان، ابھی کھاتے ہیں۔ اس نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی، رشنا کا فیورٹ فلیور اسے لے کر دیا تو اس کے معصوم چہرے پر ڈھیروں خوشیاں دکھائی دی۔ عروسہ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ کر مسکرائی کہ تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ میم، اٹس فار یو۔ وہ عروسہ کو ایک بوکے دیتا ہوا مسکرایا۔ وہ بہت انوسینٹ سا لگ رہا تھا۔ عروسہ کو حیرت ہوئی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ عروسہ کو اس لڑکی کی اٹینشن سمجھ نہ آئی۔ میم، آئی لائک یو، یور ٹیچنگ میتھڈ
वो जिस अंदाज से बोल रहा था, अरूसा को खुशगवार हैरत हो रही थी। आपको कहाँ पढ़ाया है मैंने? आपको नहीं याद, बट मुझे याद है। नेक्स्ट मुलाकात में बताऊंगा। वो अपनी कहता जा चुका था, जबकि अरूसा उसे देखती रह गई। आज अरूसा की 22वीं सालगिरह थी। सभी ने मिलकर उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने का सोचा। अरूसा यूनी से निकल रही थी कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अकेली थी, लेकिन पूरी कॉन्फिडेंट गर्ल थी। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी दिखाई न दिया जिससे वो हेल्प ले सकती। ऐसे में फिर से वही लड़का आन पहुंचा, जिसे देख अरूसा घंग रह गई। नॉट अगेन, तुम यहाँ भी पहुंच गए? उस लड़के ने बाइक रोकते हुए अरूसा की गाड़ी को चेक करना शुरू कर दिया। अब अगर आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप वहाँ मैं, तो क्या आप इस बात से खुश होंगी? वो उसकी गाड़ी को बॉन्ड बंद करता उसकी जाने मुड़ते हुए बोला, तुम हमेशा मेरी मदद करने पहुँच जाते हो ना? अरूसा ने गहरा सांस भरते हुए कहा। पहली मुलाकात के बाद आज उनकी चौथी मुलाकात थी। पिछली 2 मुलाकातों में भी वो इसकी मदद करने ही पहुंचा था। एक बार सड़क क्रॉस करने की मदद और एक बार गाड़ी पार्किंग में। और अब यू आर सो ब्यूटीफुल। अचानक से उस लड़के ने अरूसा का हाथ थामेगा तो अरूसा का दिल तक से रह गया। वो क्या बोल रहा था? उसकी आंखें की जोत देखती वो पजल हुई थी। क्या कोई ऐसे भी राह चलती किसी को बोलता था? अरूसा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। थैंक्स फॉर हेल्प। थैंक्स नहीं, आपको जुर्माना अदा करना होगा। वो जो गाड़ी में बैठ रही थी उसकी बात पे चौंकी। कैसा जुर्माना? मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पियेंगी? वो मुस्कुराते हुए बोला तो अरूसा भी मुस्कुरा दी। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं। फिर जूस पी ले, जो आपको पसंद हो। अरूसा, वो इसका नाम लेते हुए बोला, जबकि अरूसा को वो 16-17 साल का टीनेज लड़का लगा, जो तकरीबन 4-5 साल छोटा था उससे। उसे नाम से पुकार रहा था। अरूसा बिना जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट कर गई। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं अरूसा। उसकी गाड़ी की विंडो में झांकता हुआ बोला, खुद ही बता दो। अरूसा अब की बार थोड़ा जज हुई। छोड़े, जूस पियेंगी? जब मेरे साथ तब बताऊंगा। वो गाड़ी आगे बढ़ा गई। अब न जाने क्यों अरूसा को उस शख्स से खौफ सा महसूस हुआ। घर दाखिल हुई तो अंधेरा छाया हुआ था। अम्मी, रुशना, बाई, वो थोड़ा घबराई हुई थी कि एकदम लाइट्स ऑन हुई। रुशना ने अचानक इस पे पार्टी पॉपर खोलते इसे डरा ही दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर रूसापी। हैप्पी बर्थडे टू यू। रुशना चहकी थी। उसका चहकना किरण को बहुत भाता था। उनके घर की रौनक थी। सबके साथ मिलकर उसने केक काटा। एसपी, मेरा गिफ्ट। अरूसा ने कबीर के सामने हथेली फैलाई तो उसने एक बंद रैपर उसे थमा दिया। वो अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके चेहरे की एक एक मुस्कान को देखकर वो जीता था। इसमें क्या है? वो हैरान हुई। खुद खोल कर चेक करो। अरूसा ने तजस्सुस से खोला तो उसमें गाड़ी की चाबी देखती हुई हैरान रह गई। भाई, ये तुम्हारी गाड़ी है? न्यू वन। कबीर ने मुस्कुराकर उसके माथे पर लब रखे तो आंखों में आंसू लिए अपने भाई के सीने से लग गई। सामने खड़ी किरण और रुशना भी इस प्यार को देखती नम आंखों से मुस्कुरा दी। रुशना का जी चाहा काश इसका भी कोई भाई होता। वो सर झुकाए चश्मा की ओर से उस यूनानी देवताओं जैसे हुस्न रखने वाले एसपी को देख रही थी, जिसका हर नैन नक्श मकनातीसी की तरह चमक रखता था, जो सामने वाले को अपनी तरफ खींचता था। रुशना का दिल भी खींचा चला जा रहा था। अक्सर वो अपने दिल को डपट देती। सामने वाला जितना खूबसूरत था उतना ही गसीला और खूनख्वार था। ऐसा रुशना के लिए था और रुशना को ऐसा ही लगता था, जबकि माँ और बहन के लिए उस जैसा नरम दिल कोई नहीं था। कोई बात नहीं ताई अम्मी, हम बस स्टैंड से चले जाएंगे। वो जो रोज़ाना अरूसा के साथ कॉलेज जाती थी, क्योंकि अरूसा की यूनी के रास्ते में ही इसका कॉलेज आता था, तो रोज़ाना उसे छोड़ दिया करती थी। वापसी पर अक्सर देर सवेर की वजह से अरूसा इसे इन्फॉर्म कर दिया करती थी, तो बस स्टैंड से घर आ जाया करती थी। उसे कभी बुरा नहीं लगता था। आज भी कुछ ख़ास क्लास की वजह से अरूसा जल्दी चली गई और अब इसे किरण अकेले नहीं जाने दे रही थी। बस स्टैंड भी यहाँ से काफ़ी दूर है, रहने दो, आज ना जाओ। किरण ने उसका हाथ थामा। ताई अम्मी, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, वरना छुट्टी कर लेती। वो धीरे से बोली कि तभी कबीर बाहर आता दिखाई दिया। वो भी अजलत में था। कबीर बेटा, तुम रुशना को कॉलेज छोड़ दोगे आज? अम्मी यार, देर हो रही है, एक ख़ास केस के लिए जाना है। वो कलाई पर बंधी घड़ी पे वक्त देखता हुआ बोला। रुशना का दिल एक पल को दुखा, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान सुझाली। ताई अम्मी, हम बस स्टैंड से चले जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वो तेज़ी से कहती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मज़ीद खड़ी रहती तो रो देती शायद। अरूसा आप ही होती हमारी जगह तो कभी इनकार न करते, बस अपनी अपनी वैल्यू है। वो आंसू पोंछते बस स्टैंड की जानिब तेज़ी से सर झुकाए बढ़ती जा रही थी।
थूक निकलते अपने आंसू अपने हलक में उतारे। अभी बस स्टैंड थोड़ी दूरी था कि अचानक एक गाड़ी आकर उसके आगे रुकी। रुशना ने माथे पर बल डाले उस गाड़ी की जानिब देखा, पर गाड़ी में बैठे कबीर को देखकर वो स्टिक हुई। आ जाओ, गाड़ी में बैठो। वो सख्त गुड़ी से उसे हुक्म सादर कर रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे ताई अम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है, वरना चेहरा साफ बता रहा था कि वो एक सेकंड भी उसे अपने साथ गाड़ी में नहीं बैठाना गवारा करेगा। वो हम चले जाएंगे, बस आ गई है। वो सहूलत से इनकार करती बस स्टैंड की जानी बढ़ने लगी कि कबीर ने गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलते उसे पैसेंजर सीट पर पटका कि वो संभल भी ना पाई। दूसरी तरफ कबीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शाहजी, सीट बेल्ट। वो घबराई थी क्योंकि कबीर काफ़ी गाड़ी तेज़ी से चला रहा था। उसे रुशना के एटीट्यूड दिखाने पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसे वो गाड़ी तेज़ चला के जाहिर कर रहा था। अचानक गाड़ी लड़खड़ाई। वो जो सीट बेल्ट के साथ उलझी हुई थी, सीधा सर डैशबोर्ड से जा टकराया। वो बेख्तियार माथे पर हाथ रखे ज़ख्मी नज़रों से कबीर को देखने लगी। वो खुद तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके लिए उसका दिल बहुत बदसूरत। वो चुपचाप सीट को कस के पकड़ती बैठ गई। उसके माथे के एक तरफ सुर्ख निशान पड़ गया था, लेकिन कबीर को कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए रुशना एक ऐसी लड़की थी जिसके कोई एहसासात, कोई जज्बात नहीं थे। उसके कॉलेज के गेट के झटके से गाड़ी रोक गया। इस बार रुशना चौंक कर बैठी थी। झटका लगने की वजह से वो फिर आगे की जानिब लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभलने के बावजूद भी वो फिर से डैशबोर्ड से जा टकराई। अपनी आंखें सख्ती से मींचे वो एक बार फिर दर्द सहती, लेकिन इस बार कबीर ने उसे बाजू से थमे वापस सीट से लगा दिया। उतरो गाड़ी से। वही सर्ट स्पार्ट अंदाज। वो कांपती हुई बिना उसकी जानिब देखे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते नीचे उतरी। अपनी शॉल को सर पे अच्छे से ओढ़ती वो गेट की जानिब बढ़ी थी। उसके माथे पर सूजन का निशान था। वो देख चुका था, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स ना दिया, बल्कि उसके गेट से इंटर होते ही मोबाइल पे आती इंस्पेक्टर अली की कॉल अटेंड करता गाड़ी को आगे बढ़ा गया। अरे रुशना, ये तुम्हारे माथे पे क्या हुआ? उसकी दोस्त सारा उसके पास आती पूछने लगी। वो कुछ नहीं, बस पता नहीं चला दरवाजे से सर टकरा गया। वो अपना माथा शाल से छुपाती धीमा सा मुस्कुराई। काफ़ी लाल हुई है जगह, कोई मरहम लगा लेती। सारा ने फिक्रमंदी से कहा। हाँ लगा लेंगे, अभी चलें, क्लास लेट हो रही है। उसे टालती हुई क्लास की जानिब बढ़ी। इसे अब कबीर के किसी अमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जान गई थी कि कबीर इससे नफ़रत करता है। दोनों के बीच निकाह का रिश्ता भी मायने नहीं रखता था। वो ये भी जानती थी कि कबीर जैसा खूबसूरत और दिलकश मर्द अपने साथ की भी इस जैसी कम सुन लड़की को एक कदम भी चलाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने दिल से कबीर के लिए सारे जज्बात और अपनी आंखों से उसके सारे ख्वाब नोच कर फेंक दिए थे। वो ज़िंदगी को कबीर की मोहब्बत से नासूर नहीं बनाना चाहती थी, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। वापसी पर वो बस में ही आई थी। बस स्टैंड से घर तक का फासला तय करते वो ना चाहते हुए आंखों में आंसू ले आई थी। एक तरफ घर की बेटी को नई गाड़ी मिली थी जिसकी मालियत 10 लाख से ऊपर की थी, और दूसरी तरफ वो खुद थी जिसे आज भी बहुत दफ़ा बस से सफ़र करना पड़ता था। वो अल्लाह से गिला नहीं करती थी, लेकिन आज इसका दिल बहुत दुखा था। अरे आज भी देर कर दिया आने में। किरण बेगम उसके पास आई, जबकि सामने ही डाइनिंग टेबल पर कबीर और अरूसा खाना खाते दिखाई दिए। जी वो बस लेट हो गई थी। न जाने कि वो जानबूझकर बस का जिक्र कर रही थी। आज वो चाहती थी कि उसके जिस्म के ज़ख्म लोग देखें, क्योंकि रूह के ज़ख्म तो वो देख नहीं पा रहे थे। ओह आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हें वापसी पे पिक करती। वो लुबना साथ थी ना, तो इसे इसके घर छोड़ना था, तो वहाँ से सीधा घर निकल आई और तुम्हारी याद ही नहीं रही। अरूसा ने पास आते उसकी प्यार से हक किया। कोई बात नहीं आपी, आदत हो गई है हमें। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट देते कमरे की जानिब बढ़ने लगी। रुको रचना, ये माथे पर क्या हुआ है? किरण बेगम ने उसका सूजा हुआ माथा देखकर पूछा। बेख्तियार रुशना की निगाह सामने लापरवाह बैठे कबीर पर जा ठहरी, जो बहुत खामोशी के साथ खाना खा रहा था। रुशना ने शॉल से अपने माथे को ढांपा और किरण बेगम की जानिब पलटते हुए देखा। वो तायमी दरवाजे के साथ सड़ लग गया था, हमें पता ही नहीं लगा, हमें अभी करीम लगा कर आते हैं, आप फिक्र ना करें। वो तेज़ी से कमरे की जानिब भागने वाले अंदाज पे बढ़ी। कितनी लापरवाह हो गई है लड़की। कबीर बेटा, एक काम करो, एक गाड़ी रुशना को भी ले दो, बेचारी ऐसे बस से आती जाती है तो दिल होल उठता है। किरण बेगम की आवाज़ पर रुशना के कानों से टकराई तो बेख्तियार उसे अपनी ताई पर बेख्तियार प्यार आया। वजह ये नहीं थी कि उसे गाड़ी का लालच था, कम अज़ कम उन्होंने इसकी तकलीफ़ को सोचा। उसके लिए यही बहुत कुछ था। मम्मा, गाड़ी चलानी आती है उसको, एज देखिए आपने इसकी,
कल को किसी को ठोक दिया तो? वो माथे पर बल डाले हुए बोला, डोंट वरी भाई, इसे गाड़ी चलाना मैं सिखा दूंगी। आप ना इसके लिए एक गाड़ी ले लें, आखिर इसका भी तो हक है आपकी कमाई पे, आफ्टर ऑल शी इज़ योर वाइफ। अरूसा ने से छेड़ा, जबकि उसकी बात पर रुशना के गाल दहक उठे। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अरूसा, फजूल बातें मत किया करो, और इस तरह की बातें इस बेवकूफ़ के सामने तो मत ही करना। अभी इसका कच्चा ज़हन है, पढ़ाई पे तवज्जो दे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी वो तुम्हारी बाड़ी पुरानी गाड़ी मैकेनिक के पास है ना, ठीक हो गई होगी, इसे घर भिजवा देता हूँ, इस पर कुछ मैनेज कर लो। वो साफ गोई से कहता उठ गया, जबकि रुशना उसकी बात पर दिल बर्दाश्त होती अपने कमरे में जाती, दरवाज़ा लॉक कर गई। हम वाकई इस काबिल नहीं हैं कबीर शाह कि आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन सके। बहुत जल्द हम खुद ताई अम्मी से कहकर आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर देंगे, ताकि आप अपनी आइडियल लड़की से शादी कर सकें। वो आंखों में आंसू पूंछते शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। अपना चेहरा देखा तो उंगली की पूंछ से माथे की सूजन पे हाथ ठहरा। बाई, अम्मी, इतनी जल्दी मेरी शादी? वो अपसेट हुई। उसमें जल्दी क्या है रुसा, 22 साल में तो शादी हो जानी चाहिए, किरण बेगम ने प्यार से कहा, जबकि अरूसा का दिल उदास हो गया। वो इतनी जल्दी घर वालों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर माँ और भाई की बात तो माननी ही थी, इसलिए खामोशी से सर तस्लीम खम कर दिया। किरण बेगम ने अपने बचपन की दोस्त कलसूम बेगम के बेटे रईस खान से तय किया था शादी। दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को मज़ीद पुख्ता करना चाहा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उनकी दोस्तों को ग्रहण लगने वाला है। अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए हाँ करने वाली अरूसा शादी के रोज़ घर से कहीं चली गई, और मासूम रुशना की सख्ती आ गई, जो इसका दुल्हन का लिबास ज़ेब तन किए उसकी जगह बैठ गई। यह भी अरूसा का ही प्लान था कि जब तक वो वापस आती है वो घूंघट निकाल कर बैठ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, निकाह तक वो वापस आ जाएगी। अरूसा आपी, हमें डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाएं, घर मेहमानों से बड़ा है, किसी को पता चला तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। रुशना ने आंखों में आंसू लिए कहा, कुछ नहीं होता जानी, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, मुझे जाना होगा, पर वादा रहा जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो जा चुकी थी। रुशना ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो ना आई, और निकाह का वक्त आ गया। निकाह ख्वां अंदर आए तो थर थर काँपने लगी। निकाह ख्वां के साथ कबीर भी था, जिसने 1 मिनट से भी कम वक्त में पता लगा लिया कि घूंघट के नीचे अरूसा नहीं कोई और है, और वो कोई और रुशना है। इससे पहले कि निकाह के लिए अपना मुंह खोलती, कबीर ने आगे बढ़ते उसका घूंघट उलट दिया। अरूसा की जगह रुशना को देख सब पे घड़ों पानी फिर गया। किरण बेगम तो अपना दिल लेकर बैठ गई। कबीर गुस्सा से इसे खींचकर उसे जगह से उठाता। नाजुक सी लड़की सीधा उसके सीने से जा टकराई। जो गुस्सा से भरी हुई उसे देख रहा था। किसी के सामने सवाल जवाब करने की बजाय उसे अपने रूम में ले आया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। कुछ ही देर में पूरे घर में खबर आग की तरह फैल गई कि अरूसा घर से भाग गई है। रईस खान ने शिकवा कना अंदाज में माँ को देखा और वहाँ से लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकलता चला गया, जबकि सब बाराती जो बहुत कम तादाद में आए थे वो भी निकलते चले गए। कलसूम बेगम किरण के पास आती शिकायती अंदाज में देखने लगी। किरण, अगर तुम्हारी मर्जी की बेटी की मर्जी नहीं थी तो हमको हाँ ना करती ना, यूँ सबके सामने हमारी बेइज्जती करके रख दिया। वो दुखी अंदाज में बोली थी। नहीं कलसूम, मेरी बेटी राज़ी थी, वरना ऐसा कदम मैं कभी ना उठाती। वो रो दी थी, अगर राज़ी होती तो इस वक्त घर से भागी नहीं होती। वो तनफ्फुर से बोलती सर झटकती पलट गई थी। किरण बेगम के पास कहने को कुछ बचा ही ना था। उनको लग रहा था कि कोई उनकी सांसें खींच रहा था। उस वक़्त जिस तरह कबीर रुशना को लेकर रूम में गया था, उन्हें उसकी फ़िक्र हुई थी। उसका दरवाज़ा पीट रही थी, पर वो खोल ही नहीं रहा था। अचानक वो दरवाज़ा खोलता बाहर भागा था। उसने किसी पर भी ध्यान ना दिया। इस वक्त उसे भी सिर्फ बहन की फ़िक्र थी। रुशना। किरण बेगम अंदर आई तो बेड पर आड़ी तरछी गिरी हुई थी। ताई अम्मी, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो किरण बेगम के सीने से लगी बलक बलक करो दी। बस चुप मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ मेरी रुशना मासूम है। किरण बेगम ने इससे अरूसा के मुतल्लिक कोई सवाल नहीं किया था। वो दिल पे पत्थर रख गई थी। उनके दिल से अरूसा आज उतर गई थी। वो समझ रही थी कि सबके पीछे अरूसा का ही हाथ होगा। उसी ने रुशना को अपनी दुल्हन का लिबास पहनाने बिठाया होगा और ख़ुद कहीं चली गई, और रुशना मासूम उसकी बातों में आ गई और उसकी जगह दुल्हन बनकर घूंघट ओढ़े बैठ गई। वो तो शुक्र था कि कबीर ने बर वक्त घूंघट उलट दिया और देख लिया, वरना उनसे कितना बड़ा गुनाह हो जाता। वो कबीर के निकाह में थी। वो बेवकूफ़ निकाह के ऊपर निकाह करने जा रही थी।
सबको गुनाहगार करने वाली थी। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ रुशना, आई स्वेयर तुम्हें मैं अपने हाथों से जिंदा ज़मीन में दफन करूँगा। ये वादा है एक शाह का। रुशना कबीर के अल्फाज याद करती सहमते हुए आंखें मीच गई। जो वो जाते उसके कान में जहर घोल कर गया था। बेख्तियार ही रुशना अरूसा की सलामती की दुआएं मांगने लगी। उसे भी अरूसा की बेहद फिक्र थी, लेकिन कबीर के गुस्से से वो बेइंतहा डरी हुई थी। सर इस तरफ आए। इंस्पेक्टर अली कबीर शाह को लिए एक तरफ आया। एक ट्राले के नीचे लड़की आते कुचली गई थी। इस वक्त वो जगह सील हो गई थी। कबीर दिल थामे उसकी तकलीफ में गया, पर दिल से दुआ मांग रहा था कि वो अरूसा ना हो, उसकी बहन ना हो। बार बार आंखों के सामने अपनी बहन का चेहरा लहरा रहा था। लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो कबीर गहरा सांस भरते घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे। दिल बेख्तियार सजदे में गिरा। वो उसकी बहन नहीं थी। अली, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। वो कुछ देर के बाद खड़ा होते हुए बोला, और साथ ही पुलिस फोर्स को अगली हदायत दे रहा था। अपने इलाके के तमाम सीसीटीवी कंप्राइज को हैक करवाते वो अब सब वीडियोस को चेक कर रहा था। अपने इर्द गिर्द का इलाका भी वो किसी हद तक सील करवा चुका था, लेकिन जब तक सही क्ल्यू मिल नहीं जाता था तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। किसी भी वीडियो में अरूसा शो नहीं हुई थी, लेकिन फिर एक जगह वो दिखाई दी जहां वो एक कैब कराकर उसमें बैठ रही थी। उसको कबीर ने जूम करवाया और गाड़ी का नंबर क्लिक करता गाड़ी वाले को ट्रेस करने का कहा। जब तक वो बहन को ढूंढ नहीं लेता था, न घर वापस जाने वाला था, न सुकून से बैठने वाला था। वो गुस्से से भरा घर जाने के बजाय डेरे पे आया था। उसका रोम रोम जल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लड़की सामने हो और उसका गला दबा दे, कि उसे जहन्नम वासिल कर दे। रईस, एक बार देख तो लो कैसी है, हमको यकीन है तुमको बहुत पसंद आएगा। उसकी मोरे ने मोबाइल आगे करते उसे अरूसा की तस्वीर दिखानी चाहिए। रईस ने बस एक नज़र देखा और उसकी हार्ट बीट मिस हुई, और अगले ही पल वो मोरे को मोबाइल वापस गिर गया। मोरे, आपने पसंद किया तो यकीनन अच्छी ही होगी। वो इनके गले के गिर्द बाहें माइल करता हुआ बोला, और आज आपने उस फैसले पर से सख्त गुस्सा आ रहा था। काश मोरे, मैं खुद भी उस लड़की के बारे में पता लगवा लेता। वो गहरी सांस भरता। उस काली रंग आंखें और उस वक़्त सुर्खी माइल हो रही थी। लाला, उसका छोटा भाई उसके पास आया, जो इस वक्त रईस को डेरे पर देखकर थोड़ा घबरा गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रईस ने उठते हुए उसकी जानिब पेशकदमी करते हुए पूछा। वो सटपटा गया। रमीज़, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया है। अब निकाह का बंदोबस्त करो फ़ौरन। मैं ज़रा सी भी देर नहीं करना चाहता। रमीज़ का दोस्त अचानक उसके पास आता हुआ बोला। उसका दयान रईस पर नहीं गया था, वरना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कभी ना मारता। उसकी बात पर रमीज़ ने माथा मसला। कौन? कैसा निकाह रमीज़? मुझे पता चले क्या हो रहा है ये सब। रईस ने सर्द लहजे में पूछा। लाला, अब घर चले, मैं बताता हूँ। रमीज़ ने इसे वहाँ से हटाना चाहा। कोई है? प्लीज़ हेल्प, दरवाज़ा खोलो। अचानक पीछे बने कमरों में एक में से निस्वानी आवाज़ सुनता रईस बुरी तरह चौंका। रमीज़ ने सर नफ़ी में हिलाया। वो बहुत बुरी तरह फंसे थे। नहीं लाला, आप उस तरफ नहीं जाएंगे। रईस ने आवाज़ के ताक़ुब में जाना चाहा तो रमीज़ का दोस्त जहाँ से उसकी राह में हायल हुआ। एक लम्हे को तो रईस उसकी दीदा दलीली पर उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल खींच के उसे एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया कि वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। पलट के एक कहर की निगाह बाई पे डाली, जो नजरें झुका गया। रईस लब भींचता उस कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलने की देर थी। सामने खड़ी लड़की को देख रईस के जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह ब्लैकमेल करके तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अरूसा गुस्से से खड़ी हुई थी। इस वक्त वो जहाज़ेब के बताए गए एड्रेस पर पहुंची थी, क्योंकि उसने धमकी दी थी कि अगर वो ना पहुंची तो अपने आप को मार डालेगा। मजबूरन एक जान बचाने की खातिर अरूसा इतना बड़ा कदम उठा गई। आप किसी और से निकाह नहीं करेंगी अरूसा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि इश्क करता हूँ। अगर आप मेरी ना हुई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? अरूसा उसके ख्यालात सुनती सख्त तेश में आई। मैं आपके घर वालों को जान से मार दूँगा, उस शख्स को जान से मार दूँगा जिससे आपका निकाह। चिटाख, हाउ डेयर यू! खबरदार, अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे घर वालों का नाम भी लिया तो मैं मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा। मेरा निकाह है आज और मैं ज़रूर करूँगी, समझे तुम? है हिम्मत तो रोक के दिखाना। उसे चैलेंज करती पलटी थी कि उसी लम्हे जहाज़ेब ने इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया और वहीं पर बेहोश होती वो गिर गई।
जहां ज़ेब इसे रमीज़ के साथ मिलकर ख़ानदानी डेरे पर ले आया था। रमीज़ को फ़ोन किया और अपने अजीज़ुल जान लाला की शादी छोड़ता उसकी एक आवाज़ पे भागता आया, और जहां ज़ेब ने उसे बता दिया कि अपनी पसंद की लड़की को उठा लाया है और वो कमरे में बेहोश है। अभी मज़ीद बात होती कि अचानक से राइस को डेरे पे देख रमीज़ बौखला गया। अब रईस को सब पता चल जाना था, लेकिन इस सब में रमीज़ का कोई कसूर ना होते हुए भी वो कसूरवार ही था। प्लीज़ हेल्प। अरूसा ने अपने सामने खड़े वज़ा कता वाले शख्स को देखा तो फरियाद तलब करती मांगने लगी, लाला हट जाए, मैं इनसे शादी करने वाला हूँ, ये सिर्फ मेरी है। जहाँ ज़ेब जनूनी होता अरूसा की जानिब पेश कदमी करने लगा कि अरूसा ने खुद को रईस की पूंछ के पीछे छुपाया। खबरदार जो मुझे छुआ तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो रईस के पीछे कड़ी दबंग अंदाज में बोली, अभी जब निकाह होगा ना तो छूऊंगा भी। और इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, रईस ने फिर से एक मुक्का रसीद किया। क्या है ये सब? रईस अपने छोटे भाई रमीज़ पे चिल्लाया। वो घबरा गया जबकि अरूसा सहम के पीछे हटी। डेरे पे तुम ये गंद मचा रहे हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे डेरे पे ये सब करने की? वो इतनी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि अरूसा ने सहम के अपने कान बंद कर लिए। लाला प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दे, मैं इस सब में शामिल नहीं। जो किया जहाज़ब ने खुद। शट अप, जस्ट शट अप। एक लड़की को उठा के उतना धड़ल्ले से यहाँ ले आया और इसे सफाइयाँ भी देने की कोशिश में था। रमीज़, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त मेरे कहर से बचना चाहते हो तो फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, वरना नहीं लाला, मैं रूसा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उनको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ये किसी आम बंदे का डेरा नहीं है, रईस खान का डेरा है और मैं यहाँ ऐसे हरकत करने नहीं दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ से ले जाता हूँ। इसने रूसा को कलाई से थामा जिस पर उसने रईस खान की सख्त गिरफ्त पड़ी थी। अगले ही पल गिरफ्त सख्त से सख्त होती चली गई। जहाँ ज़ेब तरफ कर रह गया, मेरे होते तुम इस लड़की को छू भी नहीं सकते, दोबारा ऐसी हरकत की तो हाथ तोड़ दूंगा। झटके से उसे पीछे धकेलता वो अपनी कलाई को लिए पीछे हटा तो रमीज़ इसे ज़बरदस्ती घसीटता बाहर ले गया। रईस खान के गुस्से से ख़ानदान में सभी वाकिफ़ थे। उसका गुस्सा बहुत शदीद किस्म का हुआ करता था। थैंक्स, आपने मेरी मदद की। रईस की जानिब बढ़ते हुए धीमे से बोली, घर की दहलीज खुद पार किए या किडनैप हुई हो घर से? रईस का सवाल सुनते अरूसा का दिल धक से रह गया। वो खुद ही तो दहलीज अबूर करके निकली थी, अब किस मुंह से वापस जाएगी? अब तक तो बारात भी वापस लौट गई होगी। वो तरफते ही सोचते आंखों में आंसू लाई, अब मुझे घर छोड़ सकते हैं? उसकी बात पर रईस के लब बिंचे। किडनैप हुई थी? उसे जारहाना अंदाज में अरूसा की जानिब कदम बढ़ाए। वो डर के 2 कदम पीछे हटी। खुद एक लफ्ज़ी जवाब आया, जब शादी थी आपकी तो क्यों निकली घर से? उसका लहजा सर्द हो रहा था जबकि अरूसा हैरान हुई, आपको कैसे पता आज मेरी शादी? वो एकदम चुप हुई, उसके दिमाग में जमाका हुआ। अरूसा बेटा, रईस बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आप रईस खानज़ादा? अरूसा को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई सुनाई दी। क्या ताल्लुक़ है आपका उनके साथ? क्यों किडनैप किया उन्होंने आपको? वो इसके पास होते गुस्से से दीवार पे मुक्का मार गया। प्लीज़। वो डर के आंखें मीच गई। नो, आपके लिए कोई रायत नहीं, जाएं यहाँ से। वो इसकी तरफ देखते हुए पीठ मोड़े खुद पे जब्त करते हुए बोला, रईस आप। और मन मनाई उसके करीब हुई, सुना नहीं आपने? आउट। अब की बार वो ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि अरूसा सहम के 2 कदम पीछे की जानिब उछली। उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय किया था, वो सिर्फ नाम ही जानती थी, जबकि वो रईस खान से मिलने का इरादा तक रखती थी। पर जहाँ ज़ेब ने उसे इस कदर उलझाया हुआ था कि वक्त बीतता चला गया और शादी का दिन आ गया, और आज जिस तरह उसकी मुलाकात हुई थी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। रात के पहर उसकी फार्म हाउस के डेरे से निकलकर कहाँ जाती, उसे तो रास्तों का भी इल्म नहीं था। उस तो जगह को भी नहीं जानती थी, और एक डर कि फिर से इसको किडनैप करके कहीं और ले गया तो। बेख्तियार अरूसा ने झरझरी ली। जो भी था, सामने खड़ा शख्स गुस्सा कर रहा था, मार सकता था, लेकिन उस शख्स से अरूसा को इज्जत जाने का ख़तरा नहीं था। उसकी इज्जत रईस खान के साथ ही महफूज थी। सुनाई नहीं दिया? जाए यहाँ से। उसे अभी तक वहीं खड़ा देख माथे पर बल डाले हुए बोला, इससे तो अच्छा था कि आप मुझे उनके हवाले कर देते, बचाया क्यों? बकवास बंद करें अपनी। उसकी बात पर रईस खान को फिर से तेज आने लगा। वो पीछे दीवार में जा समाई। प्लीज़ मुझे अकेले मत भेजें, मैं। वो रोते हुए मन मनाई,
क्या हुआ? इज्जत का डर होता है ना, घर से ही ना निकलती। मेरे सामने ड्रामे मत करे और जाए यहाँ से। वो अभी अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे रह रह के सामने खड़े वजूद पे गुस्सा आ रहा था, जिसने लम्हों में अपने ख़ानदान और उसकी इज्जत पैरों तले रोक दी थी। वो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अगर वो डेरे पे ना आता तो उस लड़की के साथ क्या हो सकता था। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो कैसे कर सकती है? सही कहा आपने। वो कर्ब से सोचते अपने आंसू पूछे दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा गई। रईस खान ने वेस्ट पे हाथ रखे उसे जाते देखा। गहरा सांस भरते उसके पीछे ही लपका। वो मेन गेट अबूर करके बाहर निकली कि रईस खान ने गाड़ी उसके करीब लाते रोकी। बैठे गाड़ी में, स्मार्ट अंदाज में बोलता वो अरूसा को चौंका गया। अरूसा ने आंसू पूछते नाराज़गी से उसे देखा, जैसे कब के एक दूसरे को जानते हो। रईस ने उसके डीठ पने पर विंडो स्क्रीन पर देखते हुए दांत खिचखिचाए। इससे पहले कि मैं ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाऊं, खुद बैठ जाए। उसके स्पार्ट और गसीले बड़े अंदाज पर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसकी बैठते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जबकि रमीज़ जहांगीर को बड़ी मुश्किल संभाले उसे इसके घर छोड़ने गया। बेहतर होगा इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दे। वो अब लाला की नज़र में आ गई है। उसके लिए कुछ भी गलत मत सोचना और ना ही करना। रमीज़ ने इसे समझाना अपना फ़र्ज समझा, जबकि वो चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया। अब वो कितना समझा था ये तो वक्त ने ही तय करना था। ये तो मेरा घर नहीं। गाड़ी एक बड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई तो अरूसा घबरा गई। मेरा घर है, स्मार्ट अंदाज में जवाब आया। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? वो घबराई। तो कहाँ लेके जाता? आपके घर, वो भी साल में। कितनी किरदार कशी होगी आपकी, अंदाज़ा है? वो अब की बार गाड़ी पार्किंग में रोकते उसकी जानिब देखते दबा दबा से चिल्लाया, मैं बेकसूर हूँ, पाक दामन हूँ, अल्लाह जानता है। वो बलक बलक कर रो दी। किस किस को यकीन दिलाएंगे आप? अब की बार रईस का लहजा धीमा हुआ। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपके घर वाले? उसकी बात को नज़रअंदाज करती सवाल दाग गई। आपके भाई को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। मैं निकाह के इंतजाम करवा के। निकाह? उसकी बात काटते हैरत से उसे देखने लगी। किसका निकाह? वो डूबते दिल से पूछ रही थी। हमारा निकाह, बिना लचक के सर्द आवाज़ में कहते और उषा को बुरी तरह चौंका गया। वो गाड़ी से नीचे उतरा कि वो भी फ़ौरन उसके पीछे उतरी। आप मुझसे निकाह कैसे कर सकते हैं, जबकि मैं घर से भागी हुई लड़की, आपकी इज्जत को खाक में झोंक दिया। एक ऐसी लड़की जिसका किरदार उसके लबों पर सख्ती से अपनी उंगली जमा गया। आंखें खून रंग हो गई थी। आपके किरदार की गवाही के लिए आपसे निकाह कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी की सफाइयाँ ना देनी पड़े, वरना आपकी वालदा जीते जी मर जाएंगी। वो बिना पलकते झिपकते बोलता चला गया और फिर से अपना कहा सच कर दिखाया। अपने मोरे को इत्माद में लेता वो अरूसा से निकाह करने वाला था। अरूसा तो घंग बनी बैठी ये सब देख रही थी। उसे इन हालात में अजीब सा एहसास हो रहा था। जिस घर में वो कुछ देर पहले रुखसत होकर आने वाली थी, अब उसी घर में उसी शख्स से उसका निकाह हो रहा था। तभी उसे सामने से रईस खान के साथ चलता कबीर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपनी जगह से डर के उठ खड़ी हुई। दिल की धड़कनें थम सी गई थी। भाई को क्या सफाई देगी अब? यही सोचते उसका दिमाग माउफ होता चला गया। वो जो इस गाड़ी वाली की हिरासत में लेता उसे पूछ तूछ कर रहा था। रईस के अचानक फ़ोन आने पर वो सब कुछ छोड़े उसकी कॉल सुनने लगा और फिर उसके बताने पर उसके घर चलाया, जहाँ रूसा से मिलने से पहले रईस ने उसे इत्माद में लेते सारी बात बता दी ताकि वो हाइपर ना हो। क्या वाकई आप भी अरूसा से निकाह करना चाहते हैं? वो हैरानी से पूछने लगा, जो उससे उम्र में 2 साल बड़ा था और बड़ेपन का मुजाहरा भी किया था। उसकी बात पे रईस ने गहरा सांस लिया। वो गलत नहीं है कबीर, बेवकूफ़ी कर गई है और उसकी बेवकूफ़ी की से इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और ये अल्लाह की तरफ से लिखा है। जो वो घर से निकली भी तो मुझे ही मिली। अल्लाह की तरफ से ये इशारा ही है, मुझे वो कबूल है। वो जितनी खूबसूरती से लफ्ज़ों से इजहार कर रहा था उतना ही लहजा मजबूत था। भाई, वो दहकते दिल से खड़ी अपने भाई को देख रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, उसके अल्फाज उसका साथ छोड़ रहे थे। खुद पर काबू पाए कबीर ने उसके निकाह की इजाज़त दी। अरूसा काजिम शाह बिन्नत काजिम शाह, आपका निकाह रईस खानज़ादा वल तनवीर खानज़ादा से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज पर वो सिसकी मारा। हाँ बोलो, इतना अच्छा जीवन साथी तुमको मिलेगा, हमारे बेटे का कदर करना तुम। कलसूम बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रख के प्यार से कहा। कबूल है।
वो धड़कते दिल से कबूल है कहती आंखें मीच गई। रईस खानदाना से भी कबूल जाब के बाद सबने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। मुबारक हो। एक दूसरे को मुबारकबाद देते कबीर ने शुक्र का कलमा पढ़ा, वरना आज जिन हालात में वो गुजरा था उसका जी चाहा वो मर जाए। बहन को सही सलामत देख वो जिस कदर पुरसुकून हुआ था बस वही याद जानता था, या उसका अल्लाह। आई एम सॉरी भाई, मैंने जो किया, मैं डर गई थी, मेरी वजह से कोई जान से न चला जाए। मैं, वो धीरे से बोलती सर झुका गई। नाम क्या है उसका? कबीर की आंखें गुस्से से लाल हुई। अरूसा ने घबरा कर रईस को देखा। कबीर, मैं हैंडल कर लूँगा, बल्कि कर चुका हूँ, फिक्र न करो। रईस अरूसा को घबराता देख बीच में बोल पड़ा, जिस पर कबीर चुप होता अरूसा के सर पर शफकत बड़ा हाथ रखता गले से लगा गया। सुबह अम्मी को लेकर आऊँगा, अपना ख्याल रखना, और अब कभी बेवकूफ़ी मत करना। भाई, रुशना को कुछ मत कहना, इसे कुछ पता नहीं था, वो वहाँ मेरे कहने पर बैठी थी। रुशना का ख्याल आते वो फ़ौरन बोली, क्योंकि जानती थी कबीर वैसे ही उस पर गुस्सा करता रहता था। न जाने इस बात पर कितना गुस्सा हो जाएगा। उसका किरदार उसमें क्लियर करना अरूसा को ज़रूरी लगा। कबीर जा चुका था, जबकि कलसूम बेगम ने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया। उन्हें अब भी अरूसा दिलो जान से प्यारी थी। उसे ज़बरदस्ती फ्रूट्स और दूध पिलाते वो रईस के कमरे में पहुंचा गई, जहां अभी अभी स्टेज सजी हुई थी। वो घबराई हुई बिस्तर पर बैठी रईस का इंतज़ार कर रही थी, जो इसके लिए मसीहा साबित हुआ था। आज जो कुछ भी हुआ वो सोचते अपनी आंखें मीच गई। आंखों से आंसू बहते गालों पर लड़कने लगे। हिचकियों से रोते मुंह पर हाथ रख गई जब दरवाज़ा खुला और रईस खानज़ादा अंदर दाखिल हुआ। उसे घबरा कर पलकें उठाई। किरण बेगम मुश्किल रुशना को उसके कमरे में ज़बरदस्ती सुलाकर बाहर आई थी। मेहमान तो सब कब के चले गए थे, लेकिन एक हादसा था जो गुजर गया। वो दिल ही दिल में बेटी के लिए दुआ गो थी। जो भी था, उन्हें अपनी बेटी की परवरिश पर पूरा यकीन था। रात देर गए कबीर घर पर दाखिल हुआ तो माँ को जागता देख उनके पास जा बैठा और धीरे धीरे उन्हें सब बता दिया। वो रोती अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गई। अल्लाह ने इस बढ़ापे में उनकी लाज रख ली। कबीर बेटा, कोई हाथ की नेकी काम आ गई है, मैं शुक्राने के नफल अदा करती हूँ। जाओ तुम भी आराम करो, सुबह चलेंगे अरूसा से मिलने। बहुत ज़्यादा खफा थी वो बेटी से, लेकिन ज़्यादा देर दिल पर पत्थर न रख सकी। उस बात में सर हिलाता उठ गया। रुशना के कमरे के पास से गुजरता हुआ अपने रूम में जा रहा था कि एकदम रुशना अपने कमरे के दरवाजे से बाहर भागते हुए निकली और सीधी कबीर के सीने से जा लगी। हमने कुछ नहीं किया, हम कसम खाते हैं। वो रोते हुए कबीर के कॉलर को दबोचे गिड़गिड़ाई। कबीर को अपने होशो हवास में न लगी, जैसे किसी ख्वाब के डर से वो जागी थी। कबीर उसे अपने साथ लगाए उसके रूम में ले आया। वो डरी सहमी अपनी आंखें फैलाए कबीर को देखे जा रही थी, जो जाते उसे धमकी देकर गया था कि उसकी बहन को कुछ हुआ तो इसकी जान ले लेगा। हमने कुछ, वो फिर से बोलने लगी। जानता हूँ। पहली बार वो नरमी से इससे मुखातिब हुआ था। यहाँ बैठो। उसे बिस्तर पर बिठाता बहुत नरमी से बात कर रहा था और रुशना हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। सांस रोके वो कबीर को देखे जा रही थी, जैसे वो कहीं ख्वाब देख रही हो। कबीर ने उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत हथेली में रखे। अब रोना नहीं और कोई सफा नहीं। उसे अपने सीने में भींच गया। आज दिल में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत जाग गई थी। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ था। उसने सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बहन से की थी। हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की। हर मौका पे उसने रुशना को कमतर ही समझा था, कभी तवज्जो न दी। लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि उसके हक़ में नेक है। हाँ, वो जो आज निकाह के वक्त बैठी थी, उसकी सज़ा वो उसे सुबह देने ही वाला था, पर इस वक्त उसे कुछ न कह सका। शाह, वो सांस रोके उसे पुकार गई। उसके बालों में मूंछ पाए बस इतना ही बोला, जबकि वो काम पे जा रही थी। सो जाओ, कल बात होगी। वो उसे बिस्तर पर लिटाते उस पर कंफर्टर डाल गया। वो अरूसा आपी हिम्मत करती वो पूछ गई। ठीक है, वो मिल गई है, कल चलेंगे उससे मिलने। वो मिजाज के बरअक्स नरमी से बोला। सच में? वो चहकी तो कबीर ने इस बात में सर हिलाया। आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? वो डरते डरते पूछ बैठी। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था थम गया। तुमने जो निकाह के वक्त खामोशी इख्तियार की है, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो अपनी कहता बाहर निकल गया, जबकि रुशना का दिल फिर से ज़ोरों से धड़कने लगा। उसके रूम में आने पर अरूसा को अपनी दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? उसके चेहरे पर फैले आंसुओं को देखता परेशानी से पूछने लगा। वो हिम्मत करती उठती उसके पास आई। मैं आपको डिज़र्व नहीं करती, फिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? इस सवाल का जवाब वो कितनी देर से सोचे जा रही थी,
पर इस सवाल का जवाब उसे मिल ही नहीं रहा था। क्या मतलब आपका? आपके साथ ऐन निकाह के वक्त भाग गई, आपको आपके घर वालों को रुस्वा किया, सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया, फिर भी आपने मुझे इज्जत बख्शी। क्यों? चाहते तो मुझसे बदला ले सकते थे, मुझे रुस्वा करके, बस, या और भी कुछ कहना है? वो वेस्ट पर हाथ रखे बेतासुर लहजे में पूछ रहा था, जबकि वो पलके उठाए उसे देखने लगी। उसे एकदम उसकी तरफ बढ़ता उसे पीछे कदम मोड़ने पर मजबूर कर गया। पीछे होते वो बिस्तर पर जा गिरी। आंखें फैलाए वो इसे सरासमी की हालत में देखते गहरी सांस भर गई। कहीं वो अपनी कुर्बत की मार मारते बदला तो नहीं लेना चाहता मुझसे? अचानक से एक अलग सोच आते वो सहम कर पीछे होती उससे दूर हुई। उसका ये डर देखते राइस खान पल में समझ गया कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। रात बहुत हो गई है, चेंज कर लें और रेस्ट करें। वो अपनी कमीज़ के कफलिंग्स खोलता वापस पलट गया। उसकी ये खामोशी अरूसा की जान पे बनाई थी। वहाँ क्यों जा रही हो? बिस्तर पर आए। उसे काउच पर लेटता देख बोल पड़ा। नहीं, मैं ठीक हूँ, फौरन इनकार करके। आप खुद आ रही हैं या मैं आऊँ? रईस खान ज़्यादा की आवाज़ पर वो धड़कते दिल के साथ बिस्तर पर आए। अपसेट क्यों है? वो लाइट ऑफ करता, साइड लैम्प ऑन करता नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। उसकी जानिब करवट लेते उसे देखने लगी, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाते अब मोबाइल हाथ में उठाए गालबन कोई सूरत पड़ रहा था। अरूसा ने थोड़ा सा सर ऊपर उठाए देखा तो सूरतुल मुल्क पड़ रहा था और बहुत ही यकसुई के साथ पड़ रहा था। वो मोबाइल एक तरफ रखता अब उसकी जाने मुड़ा। क्या बात परेशान कर रही है? वो इससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे बरसों से जान पहचान हो, और यही बात अरूसा को हजम नहीं हो रही थी। आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? दिल में आया सवाल वो जुबान पर ले आई थी, जिस पे वो थोड़ा सा मुस्कुराया। हुआ था अपसेट जब आप ओझल हो गई थी, बहुत अपसेट हुआ था। जी चाहा सारी दुनिया को आग लगा दूं। आप मुझसे खो कैसे गई? और साफ कोई से बोला, जबकि अरूसा हैरानी से उसे तकने लगी। दिल और दिमाग बस में नहीं रहा था। शायद लव एट फर्स्ट साइट की बीमारी हो गई थी मुझे। मोरे ने एक बार तस्वीर दिखाई, आपका चेहरा एक नज़र देखा और दिल में बस गया। फिर कैसे मुझसे जुदा हो सकता था? उसकी जानिब पलटा और दर्द ज़रा ज़रा बढ़ने लगा कि फिर से मुझे वापस मिल गई आप। इस तरफ तो दिल को सुकून आ गया और तब आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। वो कहते तकिए पर सर रखता उसकी जानिब करवट ले गया। आपके दिल में ये नहीं आया कि मैं गलत लड़की, फिर से बाकी? गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आपकी आंखों में आंसू देखे ये दिल को खुद ब खुद नरम हो गया। अरूसा, वो इसका हाथ थामे जज़ब के आलम बोला। अरूसा को अपनी किस्मत पे रश्क सा आने लगा। वो अपनी बेवकूफ़ी में इतना प्यार करने वाला शख्स गनवाने जा रही थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको और सबको इतनी तकलीफ़ हुई। उसे सकते हुए माफ़ी मांग रही थी। उसके लब धीरे धीरे कपकपाने लगे और उनको अपने होंठों की नरम गिरफ्त में ले गया। एकदम से अरूसा साकित सी हो गई थी। उसके लब नीमवा हुए। रईस ने आंखें मीचे उसके लबों की नरमाहट को महसूस करते उस पर ज़रा सी शिद्दत दिखाई तो उसके कंधे पर हाथ रख गई। वो ज़रा सा पीछे हटा। क्या हुआ? मेरा करीब आना अच्छा नहीं लग रहा? वो मखबूर निगाहों से बारी आवाज़ में बोला। उसकी आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर देखने लगी। वो ऐसा फर्स्ट टाइम। अरूसा को समझ ना आया कि क्या बोले। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। वो इसकी नाक के साथ नाक रब करती उसकी ब्यूटी बॉन्ड पर उंगली की पूरों से छूते हुए बोला, बट एक्सपर्ट लग रहे हैं। बेख्तियार उसकी ज़ुबान फिसली थी जो उसने दांतों तले दबा दी। अब फर्स्ट टाइम है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ पता ही ना हो। उसके ऊपर साया फगन होता उसका दुपट्टा उतारता एक तरफ रख गया। अरूसा के हाथ पांव ठंडे होने लगे, लेकिन इस बार उसने रईस खान को ना रोका। ये उसका जायज़ हक था और जिस तरह मोहब्बत और अकीदत से उसे छू रहा था उसके हर लम्स पे अरूसा उसकी असीर हो रही थी। उसका दिल अपने शौहर का असीर होता चला गया। सुबह का सूरज शाह हाउस के लिए नवीद लाया था तो दूसरी तरफ खानज़ादा हाउस में खुशियों का गहवारा बन गया था। नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। खानदान भर की औरतें आ रही थी। अरूसा पठानों की रवायती लिबास में मलबूस थी और ऊपर बड़ा घूंघट ओढ़े हुए थे। खानदानी जेवरात से लदी फंदी वो अपनी सांस भी बमुश्किल ले पा रही थी। मोरे, अरूसा के घर वाले आए हैं। दूर से कान में पड़ी राइस की आवाज़ सुनते वो अपने दिल को लड़ते हुए रोक ना पाई। झट से घूंघट उलट दिया। सामने ही किरण बेगम और रुशना खड़े थे,
जबकि बाहर की जानिब खड़े अपने मोरे से बात करता रईस अपनी बीवी का दिलकश पठाने वाला रूप देखता स्टिल हुआ था। वो आज बहुत अलग सी दिख रही थी। अपनी जगह से बेख्तियार उठकर वो खड़ी हुई, आगे बढ़कर माँ के गले लगी तो इसे अपने गले से लगा की। सख्त नाराज़ थी, लेकिन कबीर के समझाते ही उसे माफ़ करती गले से लगा गई। माफ़ कर दे अम्मी। वो इनके आगे हाथ जोड़ गई। बस वादा करो आज के बाद कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी और हमेशा हर बात में शौहर को एतमाद में लोगी। वो इसे समझा रही थी और वो अच्छे बच्चों की तरह सर इस बात में हिला गई और रुशना को भी गले लगाते माफ़ी मांगी तो वह रूसा के साथ लगी इसकी गाल को छू गई। अब बहुत प्यारी लग रही है, बहुत चेंज सी। रुशना ने दिल से उसकी तारीफ की। कबीर और रुशना की अगले माँ रुखसती कर रही हूँ। किरण बेगम ने इसे सरकोशाना अंदाज में कहा, अम्मी रुशना अभी छोटी है। अरूसा परेशान हुई। बालिग है और कबीर खुद चाहता है कि रुखसती हो जाए। एक ही घर में दोनों रहते हैं, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तो इस बढ़ापे में कहाँ इज्जत संभालूंगी। वक्त रहते सब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अरूसा उनकी बात का मतलब समझ गई थी। अरूसा की नादानी की सज़ा अब रुशना को मिलने वाली थी। वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। हाँ, डर तो लगना ही था। वो थी भी मासूम। अच्छा था कबीर उसे अपने हिसार में ले लेता। कबीर ने बहुत खुश उसलूबी से इसके कॉलेज लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो अब अरूसा के बाद से रुशना को लेकर बहुत वाहमी सा हो गया था। 2 माह बाद उसने 18 को जाना था और दिल पे पत्थर रखे कबीर ने इंतज़ार किया। आज वापसी पे अच्छी खासी गर्मी थी। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो रुशना ने नकाब हटा दिया। वो पसीने से शराबूर थी। बेख्तियार एसपी की निगाह उसके लब के ऊपर काले तिल पर जा लगी। कबीर के गले में कांटे से चुभने लगे। वो दुपट्टे से खुद को हवा दे रही थी। रुशना, अभी 2 माह पूरे होने में 1 हफ्ता बाकी है। क्यों तुम चाहती हो कि आज ही रुखसती ले लूँ? वो स्ट्रिंग पे हाथ सख्ती से जमाए हुए बोला। हमने क्या किया है? वो हैरत से अपने गुलाबी लबों को नेमवा करते हुए बोली, चेहरा ढांपो। वो थोड़ा सख्ती से बोला तो रुशना बिना बहस के फौरन चेहरा ढांप गई। आइंदा एहतियात करना, मुझे तुम्हारा चेहरा खुला दिखाई न दे। हाँ, कमरे में तुम मेरे सामने बिना नकाब के, बिना हिजाब के, बिना दुपट्टे के, बिना कपड़ों के। शाहजी, वो लड़ते हुए उसे हैरत से देखेगी। वो कानों तक सुरख हुई। हाँ तो? वो गाड़ी स्टार्ट करता नॉर्मल अंदाज में बोला तो सर झुका गई, जबकि कबीर के चेहरे को एक दिलकश मुस्कान ने छुआ। हाँ, वो इस छोटी सी लड़की को अपनी शरीके हयात के तौर पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी सोच अल्लाह ने बदल दी थी। उसका पहली बार कबीर के सीने से लगना ही आग लगा गया था और बड़ी इस आग में रुशना का प्यार ही ठंडी फवार बन के बरसता तो ही इस जले दिल को सुकून आना था। अरूसा और रईस हनीमून के लिए लौटे तो साथ ही कबीर और रुशना की तैयारी शुरू हो गई। अरूसा ने हर फंक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जबकि सबके दौरान वो इस जहाज़ेब को भूल ही गई थी। रईस खानदादा ने इसे सब बुला दिया था, लेकिन रईस खानजादा कुछ भी नहीं बोला था। उसने जहाज़ेब को अच्छी खासी सज़ा दी थी कि दोबारा अब वो ऐसी हरकत करने से तौबा कर गया था। हमें डर लग रहा है रूसा भी। वो कबीर के कमरे में उसकी सेज सजाए बैठी छोटी सी बारबी डॉल रख गई थी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाई के दिल में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चाहत डाल दी है, तुम बेफिक्र रहो। वो इसकी पिंक मैक्सी पूरे बेड पे फैलाते उसे तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन वो तो दिल थाम के बैठी हुई थी। अरूसा के जाने के बाद ही कबीर अंदर दाखिल हुआ तो एक गहरा सांस भर गया। रूह हयात उसके करीब आता उसे एकदम से तकिए पर गिरा गया। शाहजी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो घबरा के उसके सीने पर बाजू जमा गई। वो कुछ भी जवाब दिए बिना उसके लबों पे झुका, उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। वो मासूम सी अपनी सांसें उखड़ती महसूस करते रोते हुए कबीर के कंधे पर मुक्के बरसा गए। सुकून आ गया। उसके माथे के साथ माथा जोड़े आंखें मीचते गहरा सांस भरते हुए बोला, पता टेस्टी है यार, इतनी यम्मी कैसे हो? उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हें पूरा का पूरा सर से पैर तक चख लूँ। सेम टेस्ट है या चेंज है? नहीं, हमें मत खाइएगा शाहजी, हम मर जाएंगे। वो घबरा के बोली, जबकि कबीर का फलक शुगाफ कहका गूंजा। वो तकिए पर सर रख के फेंकते हंसते चला गया। जबकि वो ज़रा सा ऊपर उठाए सर उसे यूँ पहली बार हंसते हुए खुद भी मुस्कुरा दी थी। उसे गर्दन मोड़ कर देखता कमर में हाथ डाले अपने ऊपर कर गया। उसका वज़न बिल्कुल फूलों जितना था। वो खमदार कमर में बेपनाह लचक। कबीर की आंखों में उसकी तलब जाग गई। तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट लिया है, लेकिन सुबह दूंगा, अभी मुझे तुमसे चाहिए। उसकी नाजुक सी कमर को मुट्ठियों में भरते हुए बोला।
पर हमने तो आपके लिए कुछ नहीं लिया। वो परेशानी से बोली, मुझे जो तुमसे चाहिए वो मैं अभी ले लूँगा, बल्कि हर रात लूँगा। बस तुमने मेरा साथ देना है, रोना नहीं है। हाथ बढ़ा के रिमोट से लाइट ऑफ करता वो बहुत धीरे धीरे उसे अपनी सार में लेता उस पर छाता चला गया। गुजरती रात में उसको अपना बनाता जा रहा था तो उसको मीठे दर्द से भी आशना कर गया। खुद ही दर्द देखकर मरहम भी रखता रहा। वो पैनिक होने और उसकी सार में सिसकती अपना आप इसके दियोहिकल वजूद के आगे हवाले कर गई। जानती थी खुलासी किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। वो तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि जिस शख्स को दिल में बसाया था, जिस शख्स का दिल असीर हुआ था, अल्लाह ने ना सिर्फ उस शख्स को दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी बल्कि उसकी ज़िंदगी हसीन सरमाया बना दिया। उसकी नाजुकपन की वजह से बहुत एहतियात से उसे छू रहा था, जबकि वो ये नहीं जानता था कि जिस मोहब्बत का वो मुसाफिर बना है उसकी राह में रुशना कब से चलती अब इश्क की मनाजिल तय कर रही थी। तेरी आंखों का जादू ऐसा दिल को अपना कैदी कर गया, बन के खुशबू छू लिया मुझको और मुझ में ही तू बस गया। अब तू है दुआ, तू ही है किस्सा, तू ही है हर मंजिल की रोशनी। मैं असीरे दिल हूँ तेरी और तू है मेरी ज़िंदगी।